Hello everyone, I am Gunjan Goyal and I am a graduate in life sciences from Miranda House, Delhi University. And in this particular video, I'll be teaching you chapter number 1 of class 12th biology, that is reproduction in organisms. So yeah, let's get started. Okay, so before jumping straight into the chapter, let's discuss about what all are we going to learn in this chapter. So as the name suggests, reproduction in organisms, we are going to study what is reproduction and what are the different ways in which an organisms carry out reproduction, all right. So let's talk about reproduction now. So reproduction is a phenomena, it's a biological process wherein parents give rise to their offsprings, all right. Parents will give rise to their younger generation, and the younger generation or the offspring that are going to be produced, they will be identical to their parents. So for example, let's say if a dog is there, a dog will only give rise to a dog, a cat will only give rise to a cat. And if we talk about our case, a child that is going to be reproduced will look similar to their parents only. Why? Because they are carrying the genes of their parents only, right? So they are going to look alike their parents only. And yeah, that is what identical means. They will look similar to their parents. I did not say they will look exactly like their parents. I said identical or similar, which means they will look alike their parents, all right. So now what is the need to study about reproduction? Why is it so important that we need to study about it, right? So number one is that it enables continuity of a species, all right. So अगर कोई बीइंग जो है वो रिप्रोड्यूस ही नहीं करेगा, अगर उनकी प्रोजेनी उनकी यंगर जनरेशन रिप्रोड्यूस नहीं होगी, तो ऑब्वियसली इट विल बी द एंड ऑफ देयर स्पीशीज, राइट. इफ अ लिविंग बीइंग डू नॉट रिप्रोड्यूस, उनकी लाइफ वही खत्म हो जाएगी. वाई? बिकॉज एवरी लिविंग बीइंग दैट इज देयर ऑन द अर्थ विल हैव टू डाई वन डे, राइट. एक लाइफ स्पैन होता है सबका. लाइफ स्पैन क्या होता है? इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन when an organism take birth और उसकी natural death के बीच का जो time duration होता है, that is a lifespan, right. And every living being that is there on the earth will have to die one day. So if they do not reproduce, it will mark the end of their species जब उनकी natural death होगी, all right. Again, similarly, the second point, it maintains life on the earth to thrive. अगर लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो लाइफ भी नहीं रहेगी अर्थ पे, राइट. And third point is that it creates variation among population which leads to evolution. So this is related to sexual reproduction only. Sexual reproduction में क्या होता है? एक process होता है which is called crossing over, जिसकी वजह से variations आती हैं. And variations की वजह से क्या होता है? Evolution होता है. तो अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो वेरिएशंस भी नहीं आएंगी और एवोल्यूशन भी नहीं होगा, राइट. एंड एवोल्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस अगेन. सो इसीलिए एवोल्यूशन के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है. अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो एवोल्यूशन भी नहीं होगा. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन कितने ऑर्गेनिजम्स लगे हैं इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, वी हैव two types of reproduction are there. So for example, the types are sexual reproduction and sexual reproduction, all right. A sexual reproduction is a kind of reproduction wherein one parent is involved in the process of giving rise to a young one, and in the sexual mode of reproduction, two parents are involved, all right. एंड ये डिसाइड कौन करता है कि कौन से काइंड का रिप्रोडक्शन होगा? बिकॉज एवरी लिविंग बीइंग इज एबल टू रिप्रोड्यूस वाया बोथ वेज एक्सेप्ट फॉर ह्यूमंस. वी कैन ओनली रिप्रोड्यूस वाया सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. बट बाकी जो लिविंग बींग्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स हो गया एंड लोअर ऑर्गेनिजम्स हो गए, दे कैन रिप्रोड्यूस वाया बोथ द वेज. सो व्हाट इज गोइंग टू डिसाइड विच मेथड दे आर गोइंग टू यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन? उनका जो हैबिटेट होता है वो एंड द इंटरनल फिजियोलॉजी अलॉन्ग विद सम अदर फैक्टर्स, इट इज गोइंग टू डिटरमाइन which method an organism is using to reproduce, all right. So let's talk about a sexual mode of reproduction. As I said, it is a kind of reproduction in which a new offspring is produced by the participation of single parent only. A single parent will be required to produce a
offspring, right? And जो offspring होगा in the case of a sexual reproduction, क्योंकि it is made by just a single parent, it is going to be not just identical but the exact copy of the parent. As I said, sexual reproduction के अंदर recombination के time पे दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो जो बच्चा होगा दैट इज गोइंग टू बी हाइब्रिड ऑफ बोथ पेरेंट्स, राइट? 50-50% जीन्स आएंगे दोनों पेरेंट्स के। बट क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट यूज हुआ है, एक सिंगल पेरेंट की हेल्प से एक बेबी प्रोड्यूस हुआ है, तो जो बेबी होगा दैट विल हैव the offspring, I must use, the offspring is going to be exactly similar to the parents, and exactly similar offspring को क्या कहते हैं हम? Clones कहते हैं, all right? Okay, so what are the different ways via which a sexual reproduction takes place? As we learned now कि a sexual reproduction में single parent involved होता है, so there are different ways via which a sexual reproduction takes place. Let's talk about them one by one. So number one method is number one type is budding. Budding में क्या होता है? It's a process in which a bud is generally an outgrowth. तो parent body के अंदर से एक आउटग्रोथ निकलना शुरू होगी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बड, जो कि धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट होती रहेगी फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड इवेंचुअली इट विल सेपरेट आउट. So as you can see in this particular picture, this is a parent body and ये जो छोटा सा दिख रहा है it is a bud. Alright, so parent body में से एक outgrowth निकली है and which is called a bud, and it will construct from this particular base and it will get separated to give rise to a individual. तो ये जो bud होगी जो अलग हो जाएगी it will be able to give rise to a new individual. ठीक है, जब इसकी ग्रोथ होगी तो it will give rise to a new individual. और ये हमें किन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है? It is generally seen in yeast and hydra. This is yeast और हम yeast के अंदर इस एग्जाम्पल के अंदर बडिंग शो हो रही है हमें, ऑलराइट. Second method is sporulation. Sporulation क्या होता है? It's a process in which tiny single cell thin walled spores जो होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं in the parent's body. So generally क्या होता है जब unfavorable condition होती है, क्योंकि reproduction करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो क्या होता है कि स्पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं पेरेंट्स बॉडी के अंदर इन अनफेवरेबल कंडीशन. तो वो बर्स्ट आउट नहीं होते हैं, बस पेरेंट बॉडी के अंदर डिवीजन चलती रहती है, कैरियोकाइनेसिस होता रहता है विच इज डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, और स्पोर्स बनते रहते हैं. एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर ये स्पोर्स बन रहे हैं इन द अनफेवरेबल कंडीशन, एंड जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होंगी द पेरेंट बॉडी से ये निकल जाएंगे बाहर. ये एक पेरेंट बॉडी थी जिसके अंदर ये छोटे छोटे स्पोर्स बन रहे थे. जैसे कंडीशंस फेवरेबल होंगी ये स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे और इंडिविजुअल जो बीइंग होगा, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देंगे. ये सब बड़े होके इंडिविजुअल बीइंग्स बनाना शुरू कर देंगे. ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनना शुरू हो जाएगा इन्हीं स्पोर्ट्स के थ्रू, एंड ये बहुत रेजिस्टेंट होते हैं टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस. एंड ये किस में देखने को मिलता है हमें? जनरली इन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड एल्गे. ठीक है, या नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन. सो फ्रेगमेंटेशन इज ब्रेकिंग. फ्रेगमेंट्स मतलब टूटना, राइट? ब्रेकिंग. तो फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है? जो पेरेंट बॉडी होती है, एज वी कैन सी हियर, पेरेंट बॉडी विल break down into 2 or more parts, and जो भी individual parts बनेंगे they will give rise to the independent individual. So this is a parent body. It can be seen in Spirogyra. So this is a Spirogyra, and Spirogyra की ये एक parent body है और इसमें से इसके दो टुकड़े हो गए और ये टुकड़ा अब एक अलग इंडिविजुअल बनाएगा और ये टुकड़ा एक अलग इंडिविजुअल बनाएगा. तो क्या हुआ कि एक पेरेंट बॉडी से दो स्पायरोगैरा, नए स्पायरोगैरा बन जाएंगे. ऑल राइट, एंड दिस कैन ऑल्सो बी सीन इन ब्रायोफाइट्स सच एज मर्केंशिया एंड टीशिया. Then another way of asexual reproduction is binary fusion. What happens in binary fusion is that जो parent body होगी it will divide into 2 equal halves, and जो 2 equal half बनेंगे वो will be the daughter cells and they will give rise to a new individual. So this is generally seen in amoeba, which is a single cell organism.
This is why amoeba is immortal also. So we'll discuss about it. So as you can see here, this is a parent amoeba. पेरेंट अमीबा में क्या हुआ कि इलंगेशन हुआ न्यूक्लियस का पहले और फिर कंस्ट्रक्शन होकर पेरेंट जो अमीबा था दैट गेव राइज टू द डॉटर सेल. जो पेरेंट था वही डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया एंड डॉटर सेल विल ग्रो एंड गिव राइज टू टू न्यू अमीबा. तो एक पेरेंट अमीबा से दो न्यू अमीबास बनने शुरू हो गए. ऑल राइट, इसी वजह से जनरली क्या कहते हैं जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं सच एज अमीबा, इट इज इमोर्टल. सारे लिविंग बींग्स जितने भी हैं इन द नेचर ऑन द अर्थ दे आर मोर्टल, दैट इज दे आर गोइंग टू डाई वन डे. ठीक है, लाइफ स्पैन है उनका. पर when we talk about amoeba which is a single cell organism, it is generally said that amoeba is immortal. Why? Because जो इसमें पेरेंट अमीबा था वही डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया. सो इट इज नॉट डाइंग, इट इज कन्वर्टिंग इनटू इट्स डॉटर सेल. सो it is not dying, right? So hence if it is not dying, it is immortal, right? Another way of a sexual reproduction, to carry out a sexual reproduction, which is generally seen in plants, is vegetative reproduction. तो vegetative reproduction क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर न्यू प्लांट स्पीशीज जो होती हैं दे विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट. वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं? रूट, स्टेम, लीफ एक्सेट्रा. इसके अंदर से जब नेचुरली प्लांट्स ग्रो करने, न्यू प्लांट ग्रो करना शुरू कर देता है इन पार्ट्स में, मतलब रूट, स्टेम, लीफ में से जब न्यू प्लांटलेट ग्रो हो जाएगी देन दैट काइंड ऑफ a sexual mode of reproduction is called vegetative propagation, right? तो अगर आपने कभी देखा होगा कोई पोटैटो को when we leave it for 2, 3, 4 days, जब वो पुराने होने शुरू हो जाते हैं तो उनमें से बर्ड्स निकलने शुरू हो जाते हैं. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आईज ऑफ पोटैटो, राइट? ग्रीन ग्रीन कलर के निकलने शुरू हो जाते हैं. सो दैट इज नथिंग बट अ न्यू प्लांटलेट ओनली. सो इफ यू टेक दैट, कट इट आउट एंड पुट इट इन the soil, it will give rise to a potato plant, right? कैसे? क्योंकि as you can see in this particular picture ऐसा ग्रीन ग्रीन कुछ दिखता है एंड अगर हम इसको ग्रो करेंगे तो these are nothing but the plantlets, these are the germinations only. ठीक है, इससे हमें न्यू पोटैटो मिल सकता है, राइट? इज इट इंटरेस्टिंग? ऐसे ही अनियन में बहुत बार होता है कि अनियन में नीचे से वो निकलनी शुरू हो जाती हैं बर्ड्स एंड उसको भी जब हम ग्रो करते हैं तो दैट विल गिव राइज टू अ न्यू अनियन प्लांट ओनली. इसमें सबसे important example which you need to know is water hyacinth which is also called terror of Bengal. इसकी बहुत rapid growth होती है which is not good for other plants. एंड ये किस किस तरीके से हो सकता है? ऑफसेट की फॉर्म में हो सकता है, बर्ड्स की फॉर्म में हो सकता है, आइस की फॉर्म में हो सकता है एंड एडवेंटिशियस रूट्स निकल सकती हैं, राइट? सो देयर आर डिफरेंट वेज. एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को इवन आर्टिफिशियल मेथड्स में भी यूज़ किया जाता है सच एज लेयरिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग, जिसके अंदर फार्मर्स जो होते हैं दे यूज दिस प्रोसेस टू गिव राइज टू अ न्यू काइंड ऑफ अ प्लांट. ऑलराइट, and the last way via which a sexual mode of reproduction takes place is regeneration. So what happens in regeneration is that, as the name suggests, re means again and generation is to generate, matlab banna. All right, so what happens in regeneration is the missing part of the organism, it is repaired via the process of proliferation of the cells. So what happens is say for example एक organism था जिसमें कट लग गया and it got divided into two parts. So what will happen is जो भी दो parts होंगे जहाँ से वो कटे हैं from that part सेल डिवीजन शुरू होगा जिससे सेल डिवाइड करना शुरू करेगी एंड प्रोलिफरेट होंगी, न्यू सेल्स बननी शुरू होंगी एंड बोथ ऑफ द पार्ट्स जो इंडिविजुअल पार्ट होंगे दे विल गिव राइज टू अ न्यू बीइंग. ऑल राइट, ओके, दो न्यू बीइंग्स बन जाएंगे. सो फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर केस ऑफ हाइड्रा, दिस वाज अ पेरेंट हाइड्रा जिसमें फॉर एग्जांपल इंजरी से या फिर कट लग गया है कुछ भी, तो ये जो दो पार्ट बने हैं कट वाले, इसमें जो अपर पार्ट है अपर पार्ट से एक नया हाइड्रा बन गया, जो लोअर पार्ट है लोअर पार्ट से एक नया हाइड्रा बन गया. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रीजनरेशन. इसमें क्या हुआ कि जो भी डैमेज्ड और मिसिंग पार्ट था, यहाँ पे ये नीचे वाला पोर्शन मिसिंग है और नीचे वाले में ऊपर वाला पोर्शन मिसिंग है. दोनों पार्ट ही एक दो न्यू हाइड्रास को जनरेट करेंगे जो कि बड़े होकर पेरेंटल हाइड्रा बन जाएंगे, सिमिलर, राइट? सो रीजनरेशन में मिसिंग पार्ट विल बी
repaired, and the new organisms will be produced by that method. And it is generally seen in Hydra, Planaria, sponges. It is also seen in echinoderms. Starfishes के अंदर भी उनकी अगर 5 आर्म्स में से एक आर्म भी बची होगी, then also एक आर्म के थ्रू ही पूरी की पूरी स्टारफिश वापस से ग्रो कर जाती है. सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैपेंस इन starfishes, which is echinoderms, and it happens via regeneration, which is a method of which is a way of asexual mode of reproduction, right? Now let's talk about the advantages of asexual mode of reproduction. So number one advantage that is there, since it requires a single individual, there is no need to find a mate. So sometimes for lower organisms, finding a mate can be an energetic or time consuming process, right? So just because इसमें single individual ही लग रहा है, so it saves their time, it saves their energy, क्योंकि उनको mate ढूंढने की need ही नहीं रहती है. Parent itself divide to form new individual, right? And another thing is that क्योंकि time कम लगता है, energy कम लगती है, तो the process is faster also. So that is that are two main advantages of asexual mode of reproduction. Also जो lower organisms होते हैं, ड्यू टू लाइक इन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे आपने देखा कि एक बीइंग से ही दो बीइंग बन गए हैं, राइट? वैसे और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो बीइंग से एक बीइंग बनता है, राइट? दो ह्यूमन बीइंग्स से या दो पेरेंट से एक ऑफस्प्रिंग बनता है. बट जनरली इन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उल्टा होता है कि एक से दो इंडिविजुअल बनते हैं जनरली, राइट? तो बहुत ज़्यादा प्रोजेनी, बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोजेनी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं पेरेंट्स, जिसका यही बेनिफिट है कि एडवर्स कंडीशन होते हैं, लाइफ की सर्टेनिटी नहीं होती है इन लोअर ऑर्गेनिजम्स. सो देयर लाइफ कैन सस्टेन एंड दे कैन थ्राइव बेटर अगर वो बहुत ज़्यादा जनरेशन में बहुत ज़्यादा नंबर में रिप्रोड्यूस होंगे, विच हैपन्स इन द केस ऑफ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट? One very important thing to note is that asexual mode of reproduction is not limited to just single cell organisms. Usually people misunderstood this that कि asexual है, बहुत simplistic होगा तो single cell organisms में होगा. ऐसा नहीं होता. It is not limited to single cell organism. जैसा हमने पढ़ा plants के अंदर भी via vegetative propagation asexual mode of reproduction होता है, right? And plants, hydra, they are not single cell organisms. इसका other way है कि simple organisms में होता है. Plant is again not a simple, but mostly simple organisms के अंदर asexual mode of reproduction होता है, but single cell में होता है ऐसा ज़रूरी नहीं होता. All right. Now let's talk about sexual mode of reproduction. So in sexual mode of reproduction, a new offspring is produced via the participation of two parents of opposite sex. So for example, if one is male, the other is going to be female, right? And vice versa. तो opposite sex के parents होना बहुत ज़रूरी है for sexual mode of reproduction to happen. It is a very important condition and you must remember this. Then it mostly happens in all multicellular organisms. सारे multicellular organisms में होता है, and mostly sexual mode of reproduction ही होता है. It can be either in birds, reptiles, dog, cat, elephant, even in humans, right? Multicellular organisms जितने भी होंगे, they mostly reproduce via sexual mode of reproduction, क्योंकि इसके भी अपने अलग ही advantages होते हैं, right? Okay, so since sexual reproduction requires two mates, two parents, it is not a simple or easy process, right? बहुत time consuming, बहुत detailed process होता है. So there are several stages. There are three main events that happen for the process of sexual reproduction, and these are: number one, pre-fertilization stage, number two, fertilization stage, and number third is post-fertilization stage. तो pre-fertilization, fertilization और post-fertilization क्या होता है, किसके रिस्पेक्ट में हम ये यूज़ कर रहे हैं, वो भी हम पढ़ेंगे. Let's talk about pre-fertilization stage first.
Pre means before. Fertilization is an event where the fusion of gametes takes place. So pre-fertilization event is the process और वो इवेंट होता है जिसके अंदर फ्यूजन ऑफ गैमीट से पहले जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं. तो अब गैमीट्स क्या होते हैं अगर हम जनरली बात करें कि गैमीट्स होते क्या हैं. गैमीट्स को इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज यू कैन कंसिडर देम एज द सीड्स. सो सीड से ही एक न्यू प्लांट बनता है, राइट. सो गैमीट्स को आप ऐसे समझ सकते हो कि इन हायर ऑर्गेनिजम्स सेक्सेस जो होते हैं अ मेल और अ फीमेल, इनके अंदर सीड्स होते हैं. सो इन मेल इट इज गोइंग टू बी अ स्पर्म. You can consider it as one seed. In female it is going to be egg. उसको आप अलग seed समझ सकते हो. तो when both of these seed fuses, they are going to give rise to a plant which is an offspring, right? तो they are nothing but seeds. Seeds क्या है? Raw material है for the plant only, right? तो अगर seeds नहीं होगा तो plant भी नहीं बनेगा. तो वैसे ही अगर गैमीट्स नहीं होंगे तो ऑफस्प्रिंग भी नहीं बनेगा इन सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का यूजुअली कोई काम नहीं होता, बट इन सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन गैमीट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड विदाउट गैमीट्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट एग्जिस्ट. ऑलराइट. सो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है? गैमीटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर. तो गैमीटोजेनेसिस क्या होता है? गैमीटो मीन्स गैमीट, जेनेसिस मीन्स प्रोड्यूस. तो फॉर्मेशन जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमीट्स बनते हैं इन मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली, उस प्रोसेस को हम गैमीटोजेनेसिस कहते हैं. Okay, so gametes, as this says, are haploid cells. That is, they have half set of chromosome, which may be similar or dissimilar in structure. What is meant by haploid, diploid? So if you know, our body has chromosomes, right? Chromosomes have genes in them and genes are made up of DNA only. तो जो हमारी बॉडी के अंदर chromosomes होते हैं they are arranged in pairs. ठीक है, pairs में होते हैं इसलिए diploid. Two sets के अंदर arrange होते हैं generally, hence it is called diploid. तो जो gametes होगा उसके अंदर half number of क्रोमोसोम्स होंगे, हाफ सेट होगा. सो फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स के अंदर 2 सेट्स हैं, जनरली हमें भी 2 सेट्स होते हैं, 2n की फॉर्म में होता है. तो जो गैमीट्स होंगे उनके अंदर सिर्फ n होगा, दैट इज 2n/2, दैट इज n. हाफ सेट ही होगा क्रोमोसोम्स का, क्योंकि हाफ फ्रॉम मेल एंड हाफ फ्रॉम फीमेल विल मेक 2n अगेन इन द ऑफस्प्रिंग. ऑलराइट. तो जैसे इसने कहा कि सिमिलर और डिसिमिलर होते हैं, विच मीन्स दैट द गैमीट्स कैन ईदर बी आइडेंटिकल in looking or they can be dissimilar, heterogametes जिनको कहते हैं. So if you see in this particular picture, these are the gametes of an algae which are also called isogametes, क्योंकि ये दोनों morphologically similar है. इसमें देख के आप ये नहीं बता सकते हो कि कौन सा मेल का है कौन सा फीमेल का है, राइट. बट इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमंस के अंदर the gametes are heterogametes. Why? Because female gamete जो होता है वो usually बड़ा होता है, which is called ovum or egg, and in male जो gamete होता है that is smaller in size and it has a tail also, that is a sperm or anthrozoid. all right, so they are heterogametes जो कि distinguishable होते हैं कि male का कौन सा है female का कौन सा है, and जो distinguishable gametes नहीं होते they are isogametes. Okay, so how are gametes formed? So the details about it we are going to study in the coming chapters, but the thing that you need to know for now is that in diploid organisms, that is जिनके अंदर 2 sets of chromosomes present होते हैं in the cells, जो gametes होते हैं they are formed via meiotic division. So meiotic division is a kind of cell division in which the number of chromosomes get half. It is also called reductional division. तो क्योंकि 2n होता है सेल्स के अंदर जनरली इन हायर ऑर्गेनिजम्स और डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, तो गैमेट्स के अंदर n ही चाहिए होते हैं, हमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चाहिए होते हैं, नॉट 2n. तो जो सेल डिवीजन होगी दैट इज गोइंग टू बी meiotic division. ओके,
whereas in haploid organisms, haploid means जिनके अंदर single set of chromosomes present होते हैं, they are already n. So mitotic division is going to happen in them. Mitotic division is equational division. इसके अंदर जितने chromosome parents में होते हैं उतने ही gametes के अंदर रहते हैं. Alright, and there are some terms that you should be familiar with, such as bisexual or hermaphrodite. So bisexual is used in the case of plants or monoecious also, and hermaphrodites are usually used in the case of animals. So bisexual और hermaphrodites वो animals या फिर वो plants होते हैं जिनके अंदर both male and female reproductive organs प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंड जिनके अंदर अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, लाइक मेल के अंदर मेल के एंड फीमेल के अंदर फीमेल के, दे आर यूनिसेक्सुअल. Okay, so now gametes are formed via mitotic and meiotic division in haploid and diploid organisms respectively. अब सेकेंड स्टेप आता है गैमीट ट्रांसफर का, कि गैमीट्स ट्रांसफर कैसे होंगे. तो गैमीट्स ट्रांसफर इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि फ्यूजन करवाना है गैमीट्स का, राइट. अगर फ्यूजन नहीं होगा तो ऑफस्प्रिंग भी नहीं बनेगा. तो गैमीट्स ट्रांसफर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूजन करवाना होता है मेल एंड फीमेल गैमीट्स का, राइट. एंड मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, जो मेल गैमीट होता है इट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमीट्स जो होते हैं वो लार्जर इन साइज होते हैं एंड दे आर जनरली नॉन मोटाइल एज वी टॉक अबाउट ह्यूमंस, ठीक है. Humans के केस में the sperm that is male gamete it is motile and small, and female gametes are generally non-motile and they are large because उनके अंदर reserved food material होता है, so they do not move. So generally male gametes को ही female gametes के पास आना पड़ता है for the process of fertilization, right. तो modes of gametes transfer क्या होते हैं, gamete किस किस वे से ट्रांसफर होता है. तो if we talk about simple plants such as algae, fungi, bryophytes or pteridophytes even, water is the mode or it is the medium through which male and female gametes move. तो वाटर के अंदर क्या होगा, दोनों अपने अपने गेमीट्स रिलीज कर देंगे. मेल प्लांट जो होता है वो अपने रिलीज कर देगा और गेमीट्स, और जो फीमेल पार्ट होता है वो अपने गेमीट्स रिलीज कर देगा. एंड वाटर के अंदर ही कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी चेक करके कि अच्छा ये मेरी स्पीशीज का है, अच्छा ये मेरी स्पीशीज का, एंड दे आर गोइंग टू फर्टिलाइज. बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है नेचर ने बना रखी, इज दैट कंपैटिबिलिटी चेक होती है. कोई भी स्पीशीज किसी भी स्पीशीज के साथ जाके फर्टिलाइज नहीं होती. रिसेप्टर्स होते हैं एंड रिसेप्टर्स के थ्रू ये चेक किया जाता है कि उसी की स्पीशीज के साथ ही वो फर्टिलाइज कर रहे हैं. ओके, सो मेल गैमीट विल फर्टिलाइज विद द फीमेल गैमीट इन वाटर इन सिंपल प्लांट्स, ऑलराइट. एंड यूजुअली क्योंकि पानी के अंदर रिलीज कर रहे हैं वो, तो सर्टेनिटी नहीं है कि कितना होगा, मतलब मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, राइट, क्योंकि वाटर के फ्लो के साथ तो कहीं भी जा सकते हैं, राइट. तो जनरली मेल गैमीट्स जो होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट, सो दैट कुछ अगर 1000 भी प्रोड्यूस करें तो कोई एक जाके fertilize कर जाए, right. We are going to study all this in detail in the coming chapters. And another is that in higher plants जो such as जो gymnosperms हो गए for example, उनके अंदर क्या होता है कि pollen grain is the carrier of male gamete. फीमेल गैमीट मूव नहीं करता, विच इज एग विच इज देयर इन द पिस्टल, ओव्यूल के अंदर होता है, तो वो तो मूव नहीं करता, तो पॉलन जो मेल गैमीट होता है वो मूव करता है, ठीक है. तो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, एंड पॉलन ग्रेन कैसे ट्रांसफर होता है, वाया द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है. पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther which is the male reproductive organ in plants to stigma which is the female reproductive organ. तो anther से stigma पे जो pollen grain का transfer होता है that process is called as pollination, ठीक है. और pollination होता कैसे है, there are different ways, different agents of pollination. It can be either via wind की help से pollination. pollens क्या होते हैं, small tiny spores like structure होते हैं जो कि एंथर के अंदर होते हैं, ठीक है. तो एंथर जब भी बर्स्ट आउट होता है ऑन मैच्योरिटी, एंथर इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, तो मैच्योरिटी पे जैसे ही एंथर बर्स्ट होता है
तो जो विंड की हेल्प से पॉलन ग्रेन होते हैं वो उड़कर पिस्टल पे आ जाते हैं, देन वाया पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन वो ओव्यूल तक चले जाते हैं एंड दे फर्टिलाइज द एग, अगर वो सेम स्पीशीज का होता है, ठीक है। ऑल्सो अनदर इज इंसेक्ट पॉलिनेशन। आपने देखा होगा बहुत बार बीज होती है उनके प्लांट्स के ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर, अट्रैक्टिव फ्लावर्स होते हैं उनके ऊपर बीज होती हैं, तो बीज के ऊपर, बॉडी के ऊपर पॉलन स्टिक कर जाते हैं एंड व्हेन bees shift from one flower to another, it is carrying the pollens from one plant to one flower to another, and bees they help करते हैं. So there are different um, agents of pollination that we're going to study in the coming chapters again. And depending upon whether the pollination is happening in the same flower, that is from the anther to stigma of the same flower, or anther to stigma of a different flower, pollination can be categorized into self and cross fertilization. So if you see in this particular diagram, this is the female reproductive part and this is the male reproductive part. anther है और ये पिस्टल है। तो जब इसी एक ही फ्लावर के एंथर से एक ही फ्लावर के पिस्टल पे पॉलन जाएंगे, दैट इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन। एंड इन क्रॉस फर्टिलाइजेशन ये एंथर इस प्लांट का है, फ्लावर का है, और ये पॉलन, ये पिस्टल इस फ्लावर का, राइट। तो जब इससे इस पर पॉलन ग्रेन्स जाएंगे, दिस इज गोइंग टू बी क्रॉस फर्टिलाइजेशन। एंड जो स्टिग्मा होता है दैट हेल्प्स इन, जब सेम ही स्पीशीज का पॉलन ग्रेन आ जाता है ऑन द पिस्टल, तो पिस्टल पे रिसेप्टर्स होते हैं एंड वाया पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होती है, पॉलन में से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होते हैं एंड वहाँ से जो मेल गैमेट्स होते हैं दे आर ट्रांसफर्ड इनटू द ओव्यूल जहाँ पे एग होता है एंड देयर द फर्टिलाइजेशन takes place. And in higher organisms, the male gametes are transferred into the female's reproductive tract via the process of copulation. All right. So now, as the gametes have already been transferred into, or has already met the female gametes, now is the time for the second stage to occur, and that is fertilization. So what happens in fertilization is that the fusion of the male and female gametes takes place, and this process is known as fertilization, or it is also called as syngamy. And the product of fertilization is a diploid zygote. So as we know that both the gametes were haploid in ploidy, so when a male and a female gamete will fuse, that is two haploid cells are fusing to form a diploid zygote. There's also a thing called parthenogenesis. So what happens in parthenogenesis is that a new being or a new individual is formed without fertilization. So whenever a new individual is formed without fertilization of female gametes, that process is called as parthenogenesis, and it can be seen in honeybees, rotifers and lizards. In honeybees specifically, the male drones that are there, they are formed from the unfertilized egg of the female, and hence they are haploid also because they are formed from the unfertilized egg, and jo gametes hote hain that is haploid only, so the male drones are haploid. There are two types of fertilization. Number one is external fertilization and number two is internal fertilization. So what happens in external fertilization is that external fertilization, as in fertilization, that is the fusion of gametes, will take place outside the body of the organism. So generally the fertilization takes place in females only, or in the female reproductive tract only. So what happens in external fertilization is that the fusion will occur outside the body of the female. And in internal fertilization, opposite, the syngamy or the fusion is going to occur inside the body of the organisms. And since the fertilization is going to take place in the surrounding in external fertilization, the gametes are released in very large amount. Why? Because the chances of fertilization is very less,
क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है, राइट। वाटर में है तो इधर उधर चले जाएंगे, विंड से जा रहे हैं तो इधर उधर चले जाएंगे। तो क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी होती है गैमीट्स के फ्यूजन की, मिलने की उनके, सो इसीलिए बहुत लार्ज अमाउंट में जो गैमीट्स होते हैं वो रिलीज किए जाते हैं in case of external fertilization. But in case of internal fertilization, ओवा जो होता है, क्योंकि उसको स्टेबल ही रहना होता है, उसको एक पर्टिकुलर जगह पे ही रहना होता है, तो वो बहुत कम अमाउंट में रिलीज होते हैं, लेस अमाउंट में रिलीज होते हैं। बट क्योंकि मेल गैमीट होते हैं उनको ट्रांसफर करना होता है, क्योंकि जनरली मेल गैमीट कम्स टू फीमेल गैमीट फॉर fertilization. तो मेल gametes जो होते हैं they are released in large amount because they have to travel towards the ovum, right? External fertilization can be seen in bony fishes, amphibians, and internal can be seen in birds and mammals and higher organisms. So if you see in this particular image, this is how fertilization takes place in plants. So this is pollen grain, which is the carrier of the male gamete, and this is ovum, which has egg in it. तो पॉलन ग्रेन जो है वो वाया पॉलिनेशन स्टिग्मा पे आ चुका है, एंड यहाँ से इट विल carry to the egg only, and then fertilization is going to take place. And वहाँ पे जहाँ पे fertilization होगा, after the fertilization the female gamete and the male gamete के fusion से zygote बन जाएगा, which is diploid. Similarly, in the case of animals, egg cell is going to fertilize with the sperm and zygote is going to form, तो diploid होगा. All right. Now since fertilization has happened, second stage भी हो चुकी है, it's time for the third stage to occur, which is the post fertilization events. So all the events that happen after the formation of zygote or after the fertilization has occurred are termed as post fertilization events. So what happens in post fertilization events is, अब zygote बन चुका है, which is single celled organism, diploid है पर single cell है, एक ही cell है वो, ठीक है। तो अब इंडिविजुअल बनना है उस जाइगोट से, सो एम्ब्रियो फॉर्मेशन विल अकर एंड एम्ब्रियो से एक न्यू बीइंग जनरेट होगा. सो दैट प्रोसेस is called embryogenesis, that is the formation of embryo from the zygote, and it marks the post-fertilization event. So here's something about zygote, that zygote is the vital link which ensures continuity of species from one generation to the next, and in all the sexually reproducing organisms, zygote marks the beginning of a new stage, and it is single-celled and diploid. Okay, so in organisms which undergo external fertilization, the zygote is formed in the external medium only. Common sense, क्योंकि अगर fusion बाहर हुआ है तो zygote is going to form in the external surrounding only, and those in which internal fertilization takes place, zygote is going to form inside the female body. And usually in algae and fungi के अंदर क्या होता है, zygote जो होता है it develops a thick resistant wall around them to prevent them from desiccation and damage, क्योंकि surrounding में है तो बहुत easily destroy हो सकता है, और अगर destroy हो जाएगा तो वो species वहीं खत्म हो जाएगी, it is not going to thrive further, right? Life खत्म हो जाएगी वहीं पे. So that's why they develop a thick wall around them so that they can germinate जब जो situations हैं वो favorable होगी. Now let's talk about embryogenesis. So what happens in embryogenesis is that the zygote is going to convert into an embryo. So for that to happen, zygote, as we studied, is a single cell organism and embryo is a multicellular organism, और embryo ही बड़ा होकर एक individual बनाएगा. तो क्योंकि जाइगोट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, उसको एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के लिए उसके अंदर बहुत सारी सेल डिवीजन होना जरूरी है, सो दैट इट कैन इंक्रीज इन नंबर, राइट. जैसे सेल्स के साइज में इंक्रीज हो, सेल्स के नंबर में इंक्रीज होगा, जो साइज होगा वो भी बड़ा होता जाएगा, राइट. तो सो फॉर दैट टू हैपन इट इज इम्पॉर्टेंट दैट द जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा माइटोटिक डिवीजन इज अ काइंड ऑफ इक्वेशनल डिवीजन. इसके अंदर हाफ नहीं होता, सेम रहता है एंड इवन इंक्रीज होता है, राइट. 1 सेल से 4 सेल्स बन जाती है इन माइटोटिक डिवीजन. सो for in embryogenesis what happens is that the zygote undergoes mitotic division and cell differentiation. डिवीजन भी होती रहेगी और डिफरेंशिएशन भी होगी, सो दैट डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट टिश्यूज बन पाए बॉडी के अंदर.
Now, depending upon whether the embryo development is taking place inside or outside the body of the organism, there are two kinds of organism. Number one are oviparous and number two are viviparous. इसमें oviparous है, मतलब डेवलपमेंट हो रही है एम्ब्रियो की. अब इसमें वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज दैट इसने ये नहीं बोला कि फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ है कि नहीं, इसने बोला है कि जो डेवलपमेंट है जाइगोट की वो बाहर हो रही है कि नहीं, राइट. सो व्हाट हैपेंस इन ओविपेरिस ऑर्गेनिज्म, फर्टिलाइजेशन तो इंटरनली होती है, बट जो डेवलपमेंट होती है जाइगोट की, इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द इंडिविजुअल्स, लाइक फीमेल ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के बाहर होती है. एंड किस फॉर्म में वो अपना जो जाइगोट होता है उसको रिलीज करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग्स की फॉर्म में, ठीक है. तो वो फर्टिलाइज्ड और यूजुअली फर्टिलाइज्ड एग्स ही होते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर फ्यूजन हो चुका होता है. और कुछ कुछ एग्स ऐसे होते हैं जो फर्टिलाइज नहीं होते, एंड कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो फर्टिलाइज्ड होते हैं, एंड फर्टिलाइज्ड वन विल गिव राइज टू द यंगर जनरेशन. तो ओविपेरिस के अंदर होता है कि जो फीमेल होती है, दे रिलीज अनफर्टिलाइज्ड और फर्टिलाइज्ड एग आउटसाइड द बॉडी, एंड देन वो बाहर आने के बाद उसकी ध्यान रखती है. एंड जब वो प्रॉपरली बड़े हो जाते हैं उनके बच्चे, in the case of hen, if you have seen कि वो काफी प्रॉपर टाइम में उसका अंदर डेवलपमेंट होता है एग्स का, वो hen उसके ऊपर बैठी रहती है, एंड देन जब कंप्लीट हो जाता है, वो बेबी प्रॉपरली ग्रो कर जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, चिक हो जाता है अच्छे से, देन इट हैचेस आउट ऑफ द एग. Similarly happens in the case of reptiles and other birds. All right. Then there comes viviparous organism. So what happens in viviparous organism is that development of zygote takes place inside the body of the female organisms, as it happens in humans कि 9 months तक baby is there in the womb of mother, and उसकी जो development है वो वहीं होती है, क्योंकि single cell से multicellular organism, that is embryo से फिर वो जब भी proper बड़ा हो जाता है तो वो सब होता है इन द बॉडी ऑफ द फीमेल्स. एंड जब वो बड़ा हो जाता है देन दे गिव बर्थ टू देम, ठीक है, यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं. एंड दिस हैपेंस इन द केस ऑफ ह्यूमन, डॉग्स, कैट, हॉर्सेस एक्सेट्रा. All right, so this is generally oviparous and viviparous are there for animals generally. एंड प्लांट्स के अंदर क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के लिए क्या होता है प्लांट्स में कि कुछ कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं प्लांट्स में. कैसे टाइप के चेंजेस हो रहे होते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो होता है, मेल गैमीट और एग का फ्यूजन हुआ है इन द ओव्यूल, तो जाइगोट भी ओव्यूल के अंदर बनेगा. एंड जाइगोट से जो एम्ब्रियो है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल ओनली. सो व्हाट हैपेंस आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज दैट, क्योंकि बहुत एनर्जी चाहिए उस प्रोसेस के अंदर बेबी को बड़ा करने के लिए, जो ज्यादा एनर्जी लेने वाले जो सोर्सेज होते हैं सच एज सेपल, पेटल, स्टेमन, ये सब फॉल ऑफ हो चुके होते हैं, क्योंकि अब इनका कोई काम तो है नहीं, ये प्लांट की बिना मतलब से एनर्जी लेंगे, फ्लावर की बिना मतलब से एनर्जी लेंगे. सो दीज फॉल ऑफ, एंड जो जाइगोट होता है वो डेवलप कर जाता है इनसाइड द ओव्यूल ओनली, एंड ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू द सीड. ओवरियन कैविटी जो होती है उसके अंदर जो जाइगोट होता है वो डेवलप हो रहा होता है इनटू द एम्ब्रियो, एंड ओव्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू द सीड, एंड सीड के अंदर ही हमारा जो एम्ब्रियो होता है वो होता है, ठीक है. एंड जो ओवरी होती है इट गेट डेवलप्स इनटू द फ्रूट, एंड इट डेवलप्स अ थिक वॉल जिसको हम पेरिकार्प कहते हैं अराउंड इट, सो दैट वो प्रोटेक्टेड रहे बाहर के एनवायरनमेंट से. सो अगेन व्हाट हैपेंस इज सेपल, पेटल एंड स्टेमन, क्योंकि अब इनका कुछ काम नहीं रहा, दे फॉल ऑफ, एंड जो ओवरी होगी जिसके अंदर ओव्यूल होते हैं, ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट के अंदर, एंड फ्रूट के अंदर सीड होते हैं, दैट इज ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, इसीलिए फ्रूट के अंदर सीड होते हैं. तो ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू सीड्स जिनके अंदर एम्ब्रियो होगा, और जो फ्रूट होगा उसके अराउंड एक थिक फ्रूट वॉल होगी जिसको हम पेरिकार्प कहते हैं, विच इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. एंड आफ्टर डिस्पर्सल जो सीड्स होंगे दे विल जर्मिनेट. तो सीड कैसे डिस्पर्स करते हैं, वही एक्सटर्नल एजेंट्स की हेल्प से, या फिर जितने भी ऑर्गेनिज्म, जैसे स्क्विरल की हम बात करें तो वो भी सीड छुपा देती है इधर उधर, राइट. सो डिफरेंट मीडियम्स की हेल्प से सीड डिस्पर्सल होता है, एंड जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस होती हैं सीड जो होगा वो ग्रो कर जाएगा टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट, एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ग्रुप ऑफ सेल एंड ऑर्गन्स फिर
बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन में एक न्यू प्लांट बनना शुरू होगा, प्लांट के साथ साथ न्यू सेल्स और न्यू ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाएंगे उस पर्टिकुलर प्लांट के। Now let's talk about the advantages of sexual reproduction. One is that क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सो देयर अकर्स रिकॉम्बिनेशन एंड जिसकी वजह से इंटरमिंगलिंग होती है जीन्स की एंड अ न्यू बीइंग रिप्रोड्यूस होता है जिसके अंदर वेरिएशंस होती है फ्रॉम द पेरेंट. इट इज आइडेंटिकल बट वेरिएशंस होती है विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एवोल्यूशन एंड वेरिएशंस की वजह से जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल होता है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं. ठीक है, अगर पॉजिटिव और गुड वेरिएशंस उसके अंदर आती हैं. देन जो ऑफस्प्रिंग होंगे दे आर गोइंग टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल क्योंकि दोनों पेरेंट्स के कॉम्बिनेशन से बने. There are different phases that are there in sexual reproduction. क्योंकि asexual reproduction में तो सिर्फ एक ही parent involved होता है. We do not have stages as such. But sexual reproduction के अंदर there are a few stages that are there in the life cycle of an organism. So there are 3 phases: juvenile, reproductive and senescent phase. So ये एक तरीके से इसलिए डिवाइड की गई है सो दैट इट इज इजी फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि वो बीइंग कब रिप्रोड्यूस कर सकता है, राइट. तो इसीलिए इन 3 फेजेस को डिवाइड कर रखा है. जुवेनाइल फेज क्या होती है, इसके अंदर जो टाइम पीरियड होता है फ्रॉम बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है और जब से लेके वो सेक्सुअली मैच्योर होना शुरू हो जाता है, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं जुवेनाइल फेज. और जुवेनाइल फेज को वेजिटेटिव फेज कहा जाता है इन केस ऑफ प्लांट्स. एंड जब जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज एंड होने लग जाती है, दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, अनदर फेज विच इज रिप्रोडक्टिव फेज. सो रिप्रोडक्टिव फेज ही वो फेज होती है जिसके अंदर एक लिविंग बीइंग जो होता है इट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. उससे पहले वेजिटेटिव फेज, जुवेनाइल फेज में अ लिविंग बीइंग कैन नॉट रिप्रोड्यूस. वो तभी रिप्रोड्यूस कर पाएगा जब इट इज देयर इन द रिप्रोडक्टिव फेज. सो इन केस ऑफ फीमेल्स, जो कि फीमेल्स के अंदर मेजरली क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं टू इंडिकेट कि दे आर सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव नाउ. आई मीन रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है. जैसे प्यूबर्टी होता है, प्यूबर्टी को ही मार्क करते हुए फीमेल्स के अंदर कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं इन फीमेल्स ओनली. ठीक है, तो व्हाट इज दैट इन प्राइमेट्स, इन केस ऑफ प्राइमेट फीमेल इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो व्हाट हैपेंस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज दैट 3 फेजेस होती हैं इनकी, प्रोलिफरेटिव, मेंस्ट्रुअल एंड सिक्रेटरी फेज होती है इनके अंदर. एंड ब्लड फ्लोज इन few particular days of the cycle. तो जो एंडोमेट्रियम होता है, एंडोमेट्रियम शेड करता है along with blood, mucus and other nutrients के साथ, along with the unfertilized egg through the vagina. all right, तो ये menstrual phase होता है जिसके जो सिर्फ इन प्राइमेट विमेन होता है, जो कि मोंकी, एप्स और ह्यूमन बींग्स होते हैं. एंड इन केस ऑफ द नॉन प्राइमेट फीमेल्स के अंदर क्या होता है, इस्ट्रस साइकिल होती है सच एज इन काउज, रैट. और इसके अंदर क्या होता है कि द फीमेल इज ओनली एबल टू रिप्रोड्यूस ओनली इन दिस पर्टिकुलर स्टेज. तो अगर वो इस्ट्रस साइकिल उसकी जब चल रही होगी देन ओनली इट विल अलाउ पॉपुलेशन. बट व्हाट हैपेंस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर द फीमेल गेट्स मेनार्क इज जब फर्स्ट टाइम इट गेट्स मेंस्ट्रुएशन, तो मेनार्क के बाद ही जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो चलती रहती है, इट कैन रिप्रोड्यूस. बट इन केस ऑफ नॉन प्राइमेट्स दे आर ओनली रिप्रोड्यूसिंग व्हेन दे आर इन द इस्ट्रस साइकिल. एंड ब्लड नहीं इसके अंदर फ्लो होता, जो एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन हो रही होती है वो भी रीएब्सॉर्ब हो जाती है इन केस ऑफ नॉन प्राइमेट्स. ऑल राइट, and then there is senescent phase which marks the end of the reproductive phase. तो जैसे ही एक organism senescent phase के अंदर आ जाता है, they are not able to reproduce. उसके बाद they will not be able to reproduce, and ultimately when an organism comes in an old age, थोड़े टाइम बाद they dies, and that marks the end of that particular individual.